السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه بسم الله الرحمن الرحيم
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. السلام عليكم. बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ ही जाबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ ही जाबाना आदिल में तुझे रख लूं ऐ जलवे जानाना आदिल में तुझे रख लूं ऐ जलवे जानाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ ही दबाना बेखुद किए देते हैं। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना आदिल में तुझे रख लूं ऐ जलवे जानाना आदिल में तुझे रख लूं। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो
रख लूं ऐ जलवा जानाना आदिल में तुझे रख लूं। दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, आदिल में तुझे रख लूं ऐ जलवा जानाना आदिल में तुझे रख लूं। From Team Umeed Academy, we would like to congratulate all the guests, distinguished guests, chief guest, guest of honor, and all the dear listeners and viewers, those are here. We would like to give congratulations. Right now the time has come to tell you about our vision. You know, maximum of you know, we have started in 2018 with 3 orphan child with the 1,000 square feet. After that, it is in 6,000 square feet with 250 child, and rest in 1,000 students are waiting. And definitely the rest will be so good. And right now the time has come to tell you our vision. Umeed Academy is not just an institution, but the manifestation of dream that entails a production house of community leaders. It works towards the holistic development of destitute and poor children, helpless orphans, and enables them to take control of their lives. The vision is to convert these children currently perceived as liabilities to the society into assets of the society. It aims at achieving all these by means of quality education accompanied by a sincere and proficient faculty and top-notch infrastructure. Umeed Academy's vision also pans the riches of fusion of world education and Islamic doctrines to include an idea of civility and spirituality at the same time. Each child that graduates from Umeed Academy shall be institutions builders and leaders, ones who shall leave their own imprints in the sands of time. Lastly, it is important to understand that what we do here at Umeed Academy has nothing philanthropic about it. It is a matter of mutual interest where we enable our children to become leaders who shall be capable and willing to make more leaders like themselves. In the future, our children and we are partners in the cause. Inshallah, the rest will be so fine. And right now, I am going to announce the guest's name, and I would like to request them to come the stage, please. First, I would like to call on the stage Mr. Mamun Akhtar Shah, founder, Samaritan Help Mission. I would like to call on the stage Mr. Abdul Qadir Shah, founder, Shine Group of Institutions, Bidar, Karnataka. I would like to call on the stage Janab Nurul Islam Shah, founder, Alamin Mission. I would like to call on the stage Mr. DCP Faiz Ahmed Sahab. Please just call on the stage. I would like to call on the stage Mr. Abu Talib Rahmani Shah, member Muslim Personal Law Board. I would like to call on the stage Rajya Sabha MP Mr. Nadhibul Haq Sahab. I would like to call on the stage Mrs. Rinku Bhattacharya, Principal Umeed Academy. I would like to call on the stage Maulana Rauf Rahmani Sahab. And with I would like to
call on the stage founder, chairman, Ummid Academy, Mr. Oli Rahmani, please. And with all these, I would like to call Yusuf Haq, Treasurer, Ummid Academy. So please come on the stage. Mr. Yusuf Haq, Treasurer, I would like to call on the stage. And with all these, I would like to call on the stage Maulana Abu Talib Rahmani, Father Martin Fakre, Sri Arun Jyoti Bhikkhu, Swami Nigunananda Puri, Sri Trasim Singh, Mufti Anwar Khan Sarigar. So please come on the stage with Treasurer Yusuf Haq. We'll give a flower bouquet to congratulating them. Please, sir. This is one of the crucial moment. I would like to call on the stage Maulana Rashan Zamir. Sir, please call on the stage. Maulana Abbas Rizvi Sahab, please, sir, come on the stage. Maulana Abbas Rizvi Sahab. Okay, now I would like to request Mr. Yusuf Haq by giving a flower bouquet to all our distinguished chief guest, honorable guest. This is a very crucial moment. Yes. Rajya Sabha MP Mr. Nadimul Haq, I am giving flower bouquet by Yusuf Haq, Treasurer. The founder of Samaritan Help Mission, Abdul Qadir Sahab, the founder of Shine Academy, Karnataka, Bidar, Janab Nurul Islam Sahab, founder of Al-Amin Mission, Father Martin, please. Wali Ramani Sahib, and the next, Swami Nigunananda Puri. Sri Arun Jyoti Bhikkhu. Sri Arun Jyoti Bhikkhu. Sri Trasim Singh. Mufti Anwar Khan. Maulana Rashan Zamir. Maher Abbas Sahab. Maulana Rauf Rahmani. पहले आज हमारे स्टेज पर जितने भी डिस्टिंग गेस्ट मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे प्यारे बच्चों और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देखिए किसी को देखकर इंस्पायर होना अलग बात है, लेकिन उसको जुनून के साथ काम करना इज़ अ डिफरेंट थिंग. आई थिंक वली रहमानी हैज़ डन दिस थिंग. उनके अंदर हमेशा से एक पैशन था. जब वो कई साल जब स्पीच दिया करते थे, लोगों को इंस्पायर किया करते थे, तो बहुत हज़ारों यूथ उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि नो, देयर शुड बी अ चेंज. ज़मीन पे चेंज लाना है और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि बदलाव बात से नहीं होता है, बदलाव सिर्फ काम से होता है. द चेंज ऑलवेज कम व्हेन यू वर्क ऑन द ग्राउंड. तो देयर आर स्टॉलवर्ड्स एंड आइकॉन सिटिंग हियर, जिन्होंने ज़मीन पे काम किया है और बदलाव लाया है पूरे हिंदुस्तान में, कौम में. और आज वली इतने कम उम्र में जो काम कर रहे हैं, और हमेशा याद रखना चाहिए, यू विल नेवर विन इफ़ यू नेवर बिगिन. हमेशा कोई भी काम की शुरुआत होनी चाहिए. तो आज एक छोटे से घर में 1000 स्क्वायर फीट में 4-5 बच्चों से लेकर जो शुरुआत हुई, जब मैं कभी उम्मीद एकेडमी में 1-2 मरतबा गया हूँ, वहाँ जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग्स देखे हैं बच्चों के अंदर, जो टीचर्स के डेडिकेशन देखा है, तो ये दर्शाता है कि दिस इंस्टीट्यूशन इज़ ग्रो वेरी बिग. इट विल गोइंग टू बी अ वेरी बिग इंस्टीट्यूशन इन द कमिंग डेज. और आज देखिए, जब लोग नेक नियति से काम करते हैं, दूसरे को ज़िंदगी बदलने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह रास्ता भी खोल देता है. हाउ दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ कम अप.
उन्होंने उनके पास लोग पास आते गए, इतनी बड़ी जगह मिल गई और आज यहाँ पर हॉस्टल बनेगा, कॉलेजेस बनेंगे, स्कूल बनेंगे, हज़ारों लाइफ चेंजेस होंगे। तो पूरी टीम को, वली के पूरी टीम को, उम्मीद एकेडमी को हम सबका हमेशा साथ रहेगा। वी आर ऑलवेज विथ वली एंड हिज टीम। और उनके तमाम जितने भी बच्चे यहाँ से निकलेंगे, जितने भी लाइफ चेंजेस होंगे, तो इसका दुआएं तो पूरा मुल्क बदलेगा। तो माई बेस्ट विशेस टू ऑल द उम्मीद एकेडमी टीम एंड स्पेशली दुआ करते हैं कि वली और उनका सेहत अल्लाह ताला उनको एक प्यारी सी गुड़िया ने अल्लाह नवाजा है। तो बेटियां रहमत होती हैं, तो जब बेटियों की आमद होती है तो बहुत रास्ते खुल जाते हैं। तो मेरी दुआएं हैं और हम सब आपके साथ हैं। आप काम करते जाइए, ये मत देखिए कि आपने कितना बड़ा काम किया है। यू कुड सी के आपने जितना किया है आप वही उसी में खुश रहें, उतना ही अगर आपने 1000 बच्चों की ज़िंदगी बदला है, दैट इज़ एनफ। सो माई बेस्ट विशेस टू ऑल द उम्मीद एकेडमी टीम। और हम सब जितने लोग हैं, हम सब हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू। Speech, and right now I would like to call on the microphone Janab Abdul Qadir sir, the founder Shine Academy, Karnataka Bidar. Sir, please. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्त मामून अख्तर साहब, नूरुल इस्लाम साहब, मौलाना मोहतरम अबू तालिब रहमानी साहब, यहाँ के क़ायद हजरात, स्वामी हजरात भी हैं और मुख्तलिफ़ मज़हब के ज़िम्मेदारान हैं। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई। ये मॉडल यहाँ पे हम देख रहे हैं माशाल्लाह, और आज हमारे मुल्क को इसकी ज़रूरत है। इसको साबित करना है, सिर्फ एक तहरीर, एक तकरीर में नहीं, साबित करना है। बड़ा अच्छा लग रहा है। वली रहमानी के स्कूल में भी गया था, बहुत मुतासिर हुआ, बहुत मुतासिर हुआ। ऐसे छोटे की शुरुआत जो होती है, यही लोग बड़े काम करते हैं। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ देखिए आप, उसकी शुरुआत ऐसी ही होती है। शाहीन बीदर में, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर में काम कर रहा है। वो भी एक छोटे से कमरे में सिर्फ 17 स्टूडेंट्स के साथ शुरू हुआ था। अब उसके 1 दिसंबर को 34 ईयर्स हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 68 ब्रांचेस इंडिया भर में काम कर रहे हैं। मोर दैन 20,000 स्टूडेंट्स की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। ये वली रहमानी साहब का जो काम है, ये अभी सिर्फ 23 ईयर्स के हैं और 18 ईयर्स से ही खिदमत खल्क़ का काम शुरू किए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये बहुत छोटा पड़ जाएगा, ये कैंपस बहुत छोटा पड़ जाएगा। हम बहुत जल्दी देखने आएंगे यहाँ पर। यहाँ पे सैकड़ों बच्चे कलकत्ते के कंजेस्टेड इलाके के स्टूडेंट्स, वहाँ पर सहूलतें नहीं हैं और माँ बाप फ़िक्रमंद हैं। आज डिस्ट्रैक्शन का ज़माना है, नस्ल डिस्ट्रैक्शन का शिकार होते जा रही है और रेसिडेंशियल स्कूल्स की आज अहमियत बढ़ गई है। अभी अलमीन मिशन जो काम कर रहा है इंडिया में, एक मिसाल है। एक बड़ी तादाद में बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेज रहा है। इस तरह से 5-10 इंस्टीट्यूशन इंडिया भर में काम कर रहे हैं। रेसिडेंशियल स्कूल्स की अहमियत बढ़ती जा रही है, इस तरफ हमको आगे बढ़ना है। मैं मुबारकबाद दूंगा वली रहमानी और उनकी टीम को। निहायत ही काबिल लोग लगे हुए हैं। शाहीन के साथ तो ऐसा हुआ था कि वो बस मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। कोई साथ में नहीं था, अकेला, बिल्कुल अकेला जो है एक छोटा सा काम शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज खिदमत करने का मौका मिल रहा है। ये इसकी मिसाल है और ये आगे तरक्की करेंगे। पीछे हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हल्की सी धूप है, शायद बहुत देर तक नहीं बैठ पाएंगी। बच्चों को चाहे तो चेयर्स के साथ सामने भेज दीजिए, वक्फे से दरमियान में भेज दीजिए। बहल बड़ी खुशी होती है ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, ऐसी शुरुआत को देखते हुए मैं अपने तरफ से मुबारकबाद भी दूंगा और कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। मेरे लिए खुशनसीबी रहेगी, यहाँ पर जो भी इमारत बनेगी उसके एक क्लासरूम को शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन स्पॉन्सर करेगा। ये हमारे लिए खुशी की बात है। ये एक सवाब जारिया है। मैं इसको ये समझते हुए ये स्टेप लेना चाहूँगा और लोगों को तरगीब भी दूँगा। शाहीन में ऐसा हुआ था एक मरतबा
कि एक ऑफिसर बताए थे कि गवर्नमेंट का फंड है और लैप्स हो जा रहा है और कलेक्टर भी इधर लैंड नहीं दे सके, तो मैं अपने कैंपस का कोना ले जाके दिखा दिया, चलो यहाँ पे बना लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे माइनॉरिटी हॉस्टल है, बच्चे वहाँ रहते खाते हैं और शाहीन में पढ़ते हैं। ये सवाब जारिया है। लोग हैरान थे कि ये उल्टा कैसा हो रहा है, गवर्नमेंट से लेते हैं लोग, उसी में पीछे पड़े हुए रहते हैं और आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं। देखिए ऐसे कामों को आगे बढ़कर करना है, ये सवाब जारिया है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए लोग तो चंदा देते हैं, किसी गरीब बच्चे के लिए कंट्रीब्यूशन करें, वो जो है सवाब जारिया का जरिया बनेगा। आज उसकी ज़रूरत है और प्यारो मोहब्बत की ज़रूरत है। शाहीन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरह से रहते हैं, इस तरह से रहते हैं, बिल्कुल भाई भाई की तरह, और एक भाईचारे का माहौल बन रहा है। हमारे मुल्क को इसकी ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, लेकिन भाईचारे की ज़रूरत हमारे मुल्क को सबसे ज़्यादा है। अगर ये हो जाए तो हमारा मुल्क फिर से दुनिया का सोने की चिड़िया बनेगा, फिर से दुनिया का सुपर पावर बनेगा और सही मानों में दुनिया का विश्व गुरु बनेगा, अगर हम भाईचारे के साथ रहेंगे। मैं आप में से सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, हम में से हर एक हमारे बरादरान वतन से ताल्लुकात को बेहतर करें, 1:5 का रेशो वो फार्मूला अख्तियार करें। हम में से ये हर एक 5-5 बरादरान वतन से मोहब्बत भाईचारे का मुजाहरा करें, उनकी गलतफहमियों को दूर करें, उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आएँ और उनके हकीकी मानों में वेल विशर बन जाएं, यानी हुज्जत पूरी कर लें। यकीन कीजिए ये मुल्क हमारा है और इसमें बड़ी ताकत है, ये आगे बढ़ सकता है। भाईचारे मोहब्बत के साथ आगे बढ़ना है, नस्ल को तालीम से आरास्ता करना है और तरबियत और तहजीब की हिफाजत करना है। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, तालीम के साथ तरबियत का अंसर अगर शामिल कर लिया जाए तो यकीनन ये कौम, ये नस्ल जो है बड़ी ताकतवर बनेगी और फ्यूचर हमारा ताकतवर रहेगा। मैं वली रहमानी को मुबारकबाद दूंगा, उनके साथियों को मुबारकबाद दूंगा और हमारी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं, हमारी ख्वाहिशात हैं कि ये इदारा फले फूले आगे बढ़े। और मैं यही भी जिक्र करता हूँ कि किसी अच्छे काम को देखकर खुश होना भी सवाब है, अच्छे काम को देखकर भी खुश होना सवाब है। मेरे कुछ साथी आ गए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के बैचमेट आ गए थे बीदर, आकर घूमे फिरे और निकलते हुए जिक्र कर रहे थे। मैं जल्दी में था, मसरूफ़ था, तो उसमें से थे मेरे दोस्त फ़खरुद्दीन, वो पूछ रहे थे, खदीर भाई आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें मुझे कुछ सवाब मिलना है, हमको कुछ सवाब हासिल करना है, तो क्या करना है? तो मैं जल्दी में था, एक ही जवाब दिया, देखकर खुश होते रहिए, सवाब मिलता रहेगा। ये आज जो है ज़रूरत है, ये हम वली रहमानी के इस काम को देखकर खुश होंगे, हमको हमारा अजर सवाब, हमारा हिस्सा मिलता रहेगा और हमारी दुआ है ये तरक्की करे, इस इलाके में चेंज आ जाए। एक इदारा एक इलाके की हालत को बदलता है। अलीगढ़ तो मिसाल है, आप लोग जानते हैं, एक इंस्टीट्यूशन से उस इलाके में चेंज आना चाहिए एक इंस्टीट्यूशन से, और वो काम इंस्टीट्यूशन के ज़रिए हो सकता है। हम इसकी उम्मीद कर रहे हैं। कलकत्ते में ज़रूरत है, मैं कई साल से जिक्र करता हूँ, कलकत्ते के आतराफ में बड़े बड़े रेसिडेंशियल स्कूल्स की ज़रूरत है। जैसा कि किसी शहर के आतराफ में पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, वैसे रेसिडेंशियल स्कूल्स की ज़रूरत है। और कलकत्ते के शहर के कंजस्टेड इलाके से बच्चे बाहर निकलें, ये मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन के ज़माने से बाहर निकलें, 9 to 12 हॉस्टल में रहकर ताकतवर बने, फिर दुनिया में फैल जाएं। दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारी हैं। अगर हमारी नस्ल ताकतवर है तो वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नौजवान आएंगे, हिंदुस्तान से नौजवान आएंगे। हिंदुस्तान यंग इंडिया इसीलिए कहा जाता है, नौजवानों की तेज़ाद यहाँ ज़्यादा है। और ये नौजवान ताकतवर बनेंगे, बासलाहियत बनेंगे, इनके अखलाक ठीक होंगे तो दुनिया पे कब्ज़ा हिंदुस्तान का हो सकता है, हिंदुस्तान के नौजवानों का हो सकता है। मैं मुबारकबाद देते हुए अपनी जगह लूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Thank you so much, sir, for enlightening the stage to be present over there. Now the time has come to call on the microphone ভারতবর্ষের একজন অন্যতম যোদ্ধা, শিক্ষা আন্দোলনের যোদ্ধা জনাব নুরুল ইসলাম সাহেব, ফাউন্ডার আল-আমিন মিশন। স্যার প্লিজ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। আজকে এই যে অনুষ্ঠান, একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানে আমরা যারা উপস্থিত আছি মঞ্চে,
মাননীয় সাংসদ জনাব নাদিমুল হক সাহেব এবং যারা কমিউনিটি লিডার, যারা রিলিজিয়াস লিডার, যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের জন্য মানুষের জন্য কাজ করেন, সেই সব নেতৃবৃন্দ, আর আমার সামনে যারা আছেন তারাও কিন্তু কমিউনিটি লিডার, তারা সমাজের এক এক অংশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এবং সবচেয়ে বড় যেটা বিষয় যে তারা শিক্ষাকে ভালোবাসেন, সমাজের পিছিয়ে থাকা অংশ যারা এখনও শিক্ষার আলো পায়নি তাদের শিক্ষায় আলোকিত করার জন্য যে প্রয়াস, সেই প্রয়াসে অংশ নিতে তারা এসছেন। আমি সকলকে আল আমিন মিশন পরিবারের পক্ষ থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমি লক্ষ্য করছি ওয়ালি রহমানী ভাই তিনি এখানে মাঝে মাঝে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু তার ভিতরে যে টেনশন, যে উত্তেজনা, সেটা কিন্তু লক্ষ্য করছি। এবং সেটা দেখতে দেখতে আমার মনে পড়ছে আমার সেই ছোটোবেলাটা, যখন আজ থেকে প্রায় ৪৫ বছর আগে একেবারে ওর মতো বয়সে, ওর থেকে আর একটু 2 বছরের ছোট ছিলাম, তখন এরকম একটা উত্তেজনা নিয়ে একটা কাজ শুরু করেছিলাম। আজকে যেমন উমিদ একাডেমি নামে একটা স্কুলের ফাউন্ডেশন হচ্ছে, ঠিক তখন খলকপুর জুনিয়র হাই মাদ্রাসা নামে একটা স্কুলের প্রতিষ্ঠা শুরু হয়েছিল 21শে ফেব্রুয়ারি 1978-এ। তো সেই যে শুরুয়াত, তখন নিজেও ভাবিনি, নিজেও কল্পনা করতে এতটা পারিনি যে আজকে তার যে ব্যাপ্তি, তার যে বিস্তার সারা রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরেও ছড়িয়ে গিয়েছে। এবং সেইটা ভাবতে ভাবতে আমার যেটা মনে হচ্ছিল যে ওয়ালি রহমানী ভাইয়ের ভিতরে যে উত্তেজনা দেখছি, যে প্যাশন দেখছি, আমার চোখ দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার সেই ছোটোবেলার সিনটাকে মনে করে যে আগামী দিনে আরেকটা বড় বিপ্লব হতে চলেছে শিক্ষাক্ষেত্রে এই পশ্চিমবাংলায়। আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনাদের কাছে দুটো অসুবিধার জন্য। একটা, প্রথম আমি বাংলায় বলছি, এটা আমার একটা বড় ঘাটতি যে আমি আপনাদের মতো করে হিন্দি বা উর্দু বলতে পারবো না, ওটা হয়তো পেরে উঠিনি, চেষ্টা করলে হয়তো পারতাম। সেই জন্যে এই যেহেতু আমার ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম, সেই জন্যে এই যে বাংলায় যে কাজটা আমরা শুরু করেছিলাম আজ থেকে এই যে ৪৫ বছর আগে যখন একটা স্কুলের মধ্য দিয়ে এটা শুরু হয়েছিল, আমি এরকম কিছু মানুষের কথা শুনে, আমি যে স্যারের কাছে পড়তে যেতাম, আমি তখন মৌলানা আজাদ কলেজে পড়ি, তখন এক অধ্যাপকের কাছে আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়তে যেতাম। তিনি আমাকে শ্রী রামকৃষ্ণের কথা, স্বামী বিবেকানন্দের কথা এবং রামকৃষ্ণ মিশনের কাহিনী শোনাতেন ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম এই জন্যে যে আমি মাদ্রাসার ছাত্র ছিলাম, সেই জন্য মাদ্রাসাতে আমি যেটুকু তফসির, যেটুকু হাদিস শরীফ পড়ে গিয়েছি, আমার স্যারের কথা যখন শুনতাম সেই কথার সঙ্গে সেই হাদিস এবং তফসিরের মিল খুঁজে পেতাম। রামকৃষ্ণ মিশন যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটা শুরু করেছিল, মূলত শিক্ষা, তার সঙ্গে স্বাস্থ্য এবং মানুষের পাশে সেবামূলক কাজ নিয়ে উপস্থিত হওয়া। এবং তাদের সবচেয়ে বড় যে উদ্দেশ্যটা ছিল, যেটা বিবেকানন্দ বলে গিয়েছিলেন, যে পিছিয়ে থাকা যে অংশ, তাদের জন্য যদি আমরা কাজ করতে না পারি, তাদেরকে যদি আমরা টেনে তুলতে না পারি, তাহলে আমরা এই দেশের এবং দশের যে উন্নয়ন, সার্বিক যে উন্নয়ন, সেটা আমরা করে উঠতে পারবো না। এবং সেই ভাবনা থেকেই রামকৃষ্ণ মিশন শুরু হয়েছিল। এবং সেই কথা শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল যে আমাদের অভিজ্ঞতা তো তাই দেখেছি, মাদ্রাসা করতে গিয়ে বিভিন্ন অফিসে যখন যেতে হচ্ছে, তাতে দেখেছি যারা সমাজের নেতৃস্থানীয় জায়গায় আছে, বিভিন্ন ফিল্ডে যারা লিডারশিপ দিচ্ছে, তাদের একটা অংশ রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র। এবং সেই ভাবনা থেকে আমরা এটা শুরু করেছিলাম। এবং ওলি রহমানী ভাই যেমন 5টা ছেলে নিয়ে শুরু করেছে ছাত্র নিয়ে, আমরা 7টা নিয়ে শুরু করেছিলাম 36 বছর আগে একটা ছোট্ট ঘরে। এবং সেটা বাড়তে বাড়তে এখন 54,000 রেসিডেন্ট স্টুডেন্টের এই আলামিন, যদিও 54-এর 36 যারা অ্যালমনি, এখন 18,000, 18,000 যারা আমাদের কাছে আছে। এবং সবচেয়ে যেটা বড় বিষয়, যে আমাদের এই যে পিছিয়ে থাকা যে অংশ, যার কথা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, সেই সব পিছিয়ে থাকা অংশের প্রতিনিধিত্ব সেই সব জায়গাগুলোতে, যে জায়গাতে থেকে সমাজের জন্য, রাজ্যের জন্য এবং দেশের জন্য সবচেয়ে বেশি কাজ করা যায় তার উন্নয়নে এবং সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে, সেই জায়গাগুলোতে ওই পিছিয়ে থাকা অংশের রিপ্রেজেন্টেশন ছিল না। বিশেষ করে এই একটু আগে যার কথা শুনলেন, ডক্টর কাদের সাহেব, তিনিও যে কোচিংয়ে, নিটে যে কোচিং করে তাদের সাফল্যের কথাও জানেন। সেই ওয়েস্ট বেঙ্গলে মেডিকেলে বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে রিপ্রেজেন্টেশন ছিল 2 থেকে
আজকে এবারে যে মেডিকেলে ভর্তি হলো, ফার্স্ট রাউন্ডে যে লিস্ট বেরিয়েছে তাতে দেখেছি অ্যাকর্ডিং টু র্যাঙ্কিং, মানে জেনারেল র্যাঙ্কিং, 36.2% বেঙ্গলে মেডিকেলে সিট পেয়েছে সংখ্যালঘু সমাজের ছেলেমেয়েরা। এবং এটা থেকে বোঝা যায় যে একটা সমাজের ভিতরে যদি একটা পরিবর্তন আনতে হয়, তার সবচেয়ে বড় টুলস হচ্ছে এডুকেশন। সেই এডুকেশনটা যদি ঠিক মতো কাজে লাগানো যায়, তাহলে সমাজ আপনি থেকে পাল্টে যায়। তার একটা বড় উদাহরণ মুর্শিদাবাদ জেলা, যে জেলাটা শুধু পশ্চিমবাংলার মধ্যে পিছিয়ে থাকা জেলা নয়, ভারতবর্ষের পিছিয়ে থাকা জেলার অন্যতম। সেই মুর্শিদাবাদে প্রতি বছর মেডিকেলে আমাদের কাছ থেকে যে ছেলেমেয়েরা পায়, তার 3 ভাগের 1 ভাগ, প্রায় 30%-এর উপর সেই মুর্শিদাবাদ থেকে একটা জেলা থেকে পায়। এবং আজকে আমরা দেখছি সেই মুর্শিদাবাদ কেমন করে পাল্টে যাচ্ছে। আমি যে দুঃখ প্রকাশ করছিলাম এইটাই, যে এই যে আমাদের রাজ্যে যে উর্দু স্পিকিং মহল, তাদের জন্য আমরা কিন্তু সেইভাবে করে উঠতে পারিনি। এটা আমাদের একটা যন্ত্রণা। কারণ পারিনি এই জন্যে যে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম আছে, আমরা সেইভাবে কমিউনিকেট করতে পারিনি, তাদের কাছে পৌঁছতে পারিনি, তারাও হয়তো আমাদের কাছে পৌঁছতে পারেনি। অলি রহমানি ভাইকে দেখে আমার মনে হচ্ছে এই যে 19 শতকে যে নবজাগরণ শুরু হয়েছিল, খুব ঘটনাক্রমে হাওড়ায় যে গ্রামটাতে আলামিন মিশনের জন্ম, তার চারিপাশে 50 কিলোমিটার মধ্যে রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দের তৈরি রামকৃষ্ণ মিশন, সেই রামকৃষ্ণের জন্ম 50 কিলোমিটার চারপাশে। সেখান থেকে একটা নতুন জাগরণ শুরু হয়েছিল, যেটা বাংলায় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা নিয়েছে। আমার আজকের বিশ্বাস যে ওলি রহমানি ভাইয়ের হাত ধরে আল্লাহ পাক যে কাজের সূচনা আজকে করছেন, আগামী দিনে একটা যে অংশকে আমরা ঠিকমতো তাদের জন্য কাজ করে উঠতে পারিনি, সেই জায়গায় লিডারশিপ দেওয়ার জন্য আল্লাহ যেন অলি রহমানিকে একটা রহমত হিসেবে পাঠিয়েছে, আমি মনে করি, এটা আমার বিশ্বাস। সেজন্য আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের সবার এটাই কামনা হবে, এটাই দোয়া হবে, যে সে যে মন নিয়ে, যে প্যাশন নিয়ে যে কাজটা শুরু করতে চাইছে, আমরা যদি তার পাশে থাকি এবং তার জন্য যদি দোয়া করি, যার যেমন সামর্থ্য হবে সেইভাবে যদি আমরা তাকে সহযোগিতা করতে পারি, তাহলে আগামী দিনে আমরা দেখব যে এই রাজ্যের এই পিছিয়ে থাকা অংশের একটা বড় অংশই কিন্তু আমাদের এই রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে, আমাদের দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে, সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এবং দেশকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করার ক্ষেত্রে একটা ভূমিকা নেবে। আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, যে আমরা এটা বিশ্বাস করি যে আমরা যারা এগিয়ে আছি, তারা যদি শুধু আমরা নিজেরা ভালো থাকতে চেষ্টা করি, আমরা ভালো থাকবো না। আমাদের পিছিয়ে থাকা যারা অংশ, তাদেরকে যদি ভালো রাখতে সাহায্য না করি, তাদেরকে যদি একটু টেনে তোলার চেষ্টা না করি, তাহলে সেই বৃহৎ অংশ ভালো থাকতে দেবে না। পরিবেশ এমন হবে যে তাতে আমরা যারা শিক্ষিত এবং যারা প্রতিষ্ঠিত মানুষ, যারা ভালো থাকতে চেয়েও কিন্তু ভালো থাকতে পারবো না। সেই জন্যে এটা আমাদের কর্তব্য, যে এটাও হাদিস, প্রতিবেশীর হক আদায় করতে হবে। আমার যারা প্রতিবেশী সমাজ এবং চারিপাশে আমাদের যারা আছে, তাদেরকে টেনে তোলার দায়িত্ব আমরা যারা এগিয়ে আছি, আল্লাহ যাদের একটু ভালো রেখেছেন। উদ্দেশ্য একটাই, যে আমরা সকলে চেষ্টা করব নিজেরা ভালো থাকতে, মাথা উঁচু করে সম্মানের সঙ্গে, ইজ্জতের সঙ্গে, ইমানের সঙ্গে বাঁচতে। শুধু একা একা আমরা ভালো থাকবো তা না, আমাদের চারিপাশে যে মানুষজন আছে সেই সকলকে নিয়ে আমরা ভালো থাকার চেষ্টা করব। শুধু আমাদের রাজ্যে না, শুধু আমাদের দেশে না, সারা পৃথিবীর যে প্রান্তে আমরা থাকব, আমাদের যে পজিটিভ যে ওয়েভ, সেটা আমরা ছড়িয়ে দিতে পারবো এবং সকলকে ভালো রাখার চেষ্টা করব। আমরা যারা বিলিভার্স, যারা আমরা বিশ্বাস করি যে এই দুনিয়া সব নয়, আখেরাত বলে আরেকটা জিনিস আছে, পরকাল আছে, তারা আমরা এইটা বিশ্বাস করব। এই দুনিয়াতে যদি আমরা ভালো থাকতে পারি, অন্যকে ভালো রাখতে পারি, তাহলে আমাদের সকলের পরকাল মঙ্গলময় হবে। এই দোয়াতে আমি শেষ করছি। আমিন। ধন্যবাদ। In a short speech, DCP Faiz Ahmed. So please. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस प्रोग्राम में मौजूद जनाब नदीमुल हक, ऑनरेबल MP साहब, अब्दुल कादिर साहब, नूरुल इस्लाम साहब और भी सभी रिस्पेक्टेबल डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले मैं आज उम्मीद एकेडमी के उर्वे रवा जनाब अली रहमान और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। आपका ये प्रोजेक्ट
बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। आपने 5 लोगों से शुरू किया, आज इंशाल्लाह आइंदा कल ये 5000 तक जाएगा ही, 5000 से भी ज़्यादा जाएगा। यहाँ पर आपने स्कूल, एक अच्छा स्कूल, मियारी स्कूल कायम करने जा रहे हैं। मैं आज इस प्रोग्राम में मैं शामिल हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जो काम कर रहे हैं, काम करते रहें, हम सब साथ हैं। आपका बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबों का। आप काम करें, मैं सब साथ हूँ। ये चंद बातों के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। আমাদের পশ্চিম বাংলায় সংখ্যালঘুর মধ্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং শিক্ষার জগতে একটা বিপ্লব ক্রান্তি তৈরি করার জন্য जिनार উপরে আমরা গর্ব করি, जनाब नूरुल इस्लाम साहब। स्टेज पर मौजूद हमारे राज्यसभा के मुअज़्ज़ज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब नदीमुल हक साहब, जनाब तस्लीम सिंह साहब, जनाब मेहर अब्बास साहब, भाई भिक्षु साहब और तमाम हजरात जो यहाँ पे मौजूद हैं, जनाब फयाज साहब। सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे मुस्तकबिल की उम्मीदें हैं, जब सूरज डूब जाता है तो रात में सितारे आवाज़ देते हैं, कोई बात नहीं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक इस जहां को रोशन रखने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद वलीउद्दीन रहमानी ये एक नाम है और आइंदा इंशाअल्लाह ये उम्मीद और हौसला और ब्रांड भी होगा इंशाअल्लाह। ये उस दीवाने शख्स का नाम है, ये उस जुनूनी शख्स का नाम है जो जब रास्ते पे चलता है तो सिर्फ अपनी मंजिल को देखता है, कमेंट करने वालों को नहीं सुना करता। ये उस नौजवान और मेरे अजीज का नाम है जो आवाज देने वाले, निगेटिव और पॉजिटिव बोलने वालों से बेपरवाह होकर जब वो आगे बढ़ता है तो 18 साल की उम्र से 23 साल पहुंचते पहुंचते वो जनाब नूरुल इस्लाम साहब जैसे एक तजर्बेकार इंसान की आंखों का ख्वाब बन जाता है। वो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की दुआओं का मरकज बन जाता है। और मुझे कहने नहीं दीजिए, लोगों ने जंगल में मंगल तो बहुत किए होंगे, कुछ साल रुक जाइए, इस जंगल में जुमा कायम होगा इंशाअल्लाह। वो एक हौसला और उम्मीदों के साथ। लेकिन आइए मैं इस वक्त का एक फायदा उठाता हुआ चलूं कि नीचे गिर जाना यह हादसा है, मगर मुस्तकिल गिरे रहना ये एक बीमारी है। हमें अपने आप के बारे में देखना चाहिए कि हम गिर चुके हैं या गिरे रहना चाहते हैं। अगर गिरे रहना चाहते हैं तो हमारे समाज और माशरे में लाखों हाथ ऐसे हैं जो टांगों को खींचा करते हैं। खुदा करे कुछ हाथ ऐसे हो जाएं जो हाथों को खींचने वाले बन जाएं। मैं आपसे कहता हूं कि जो खींचने का अमल है उसे बरकरार रखें, अब टांगों के बजाय हाथों को खींचना शुरू करें। अरे उस कौम की हालत हुकूमत क्या बदलेगी, खुदा भी नहीं बदला करता, जिसे अपनी हालत बदलने की खुद फिक्र नहीं हुआ करती। आइए हम अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें। हमारा एक पड़ोस मुल्क है जिसका नाम लेने में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि आजकल उसके साथ हमारे रिश्ते टेक्नोलॉजी के तो हैं लेकिन मोहब्बतों के नहीं हैं। लेकिन चाइना की कहावत यह है कि अगर आपको एक आध साल में कोई प्रॉफिट चाहिए तो आप खेती कर लो, अगर आप 2-4-10 साल पेशेंस रख सकते हो तो आप पेड़ लगाओ। लेकिन अगर आप पूरी कौम और पूरी बरादरी और पूरी नस्ल को बेहतरीन कुछ देना चाहते हो तो अपने लिए इदारे कायम करो, क्योंकि जब इदारे कायम होते हैं तो नस्लें बनती हैं, जमाना फिर उसे देखकर मुस्कुराता है। उम्मीद एकेडमी ये उम्मीद है, उस शानदार ख्वाबों की शर्मिंदे ताबीर है जिसे हमारे बुजुर्गों ने देखा है, जिसमें अकाबिर और सुलहा की दुआएं शामिल है, जिसमें मोहम्मद वलीउद्दीन और उनके वालिदैन का इखलास और उनकी जान माल शामिल है। और मैं अगर कहूं तो ये बात बुरी न होगी कि जहां पर हजारों लाखों दोस्तों की मोहब्बतें शामिल है, वहां उनकी मां की जेवरात की रकमें भी शामिल है। ये बुनियाद कमजोर नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह, ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। एक जमाना था जब छोटे से कमरे में बीदर जैसे एक छोटे से जिले में
शाहीन एकेडमी ने अपनी बुनियाद रखी थी। 2010 में मैंने उसकी जियारत की थी कि वो एक छोटा सा कमरा था, लेकिन आज 2022 में जब जाता हूं तो वो एक शानदार यूनिवर्सिटी नजर आती है। और डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि ये वीरान था, ये वीरान था। मेरे ख्याल से मैं शायद उन लोगों में हूं जो 20 बार जा चुका हूं शाहीन के अंदर, और जब जाता हूं एक नई जिहत मिलती है। डॉक्टर साहब आइंदा आइएगा इंशाअल्लाह, यहाँ भी आपको एक इल्म का शहर मिलेगा, एक चमन मिलेगा, एक गुलिस्ता मिलेगा। अल्लाह बुरी नजरों से मोहम्मद वलीउद्दीन, उनके तमाम साथियों की और हम सब की हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I want to tell, he's a man of purpose, he's a man of dignity, he's a man of integrity, he's a man who is going to achieve what he is trying to dream for. Because he is ever about the purpose that he has in his mind, to touch the innocent lives of these future pillars. I want to thank God for this wonderful heart that God has kept in our midst. I remember the day I came in Calcutta. I'm not from here, I'm from Bombay. As I served Indian Army as an army chaplain, I know the discipline within every person who wears the uniform. This is a time to say that everyone need to have his or her personal discipline in life. Because when you are disciplined in life, you would like to entertain and allow others also to enjoy the discipline for others. You educate them, and that's why this gentleman, Wali Rahmani, this our younger brother, has a vision, and this vision he is going to accomplish with our togetherness, by supporting him, by praying for him, by standing with him. As we dignitaries are sitting over here, I always feel we are the servant of God. We are servant for good things, to touch the lives of others. We are not someone who sits over here and we try to show that we are someone else. No, we are just servant. हम केवल एक नौकर इंसान है कि जो सेवक की सेविका वो निभाते हैं। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। और जब कर्नाटका से जो हमारे भाई आए हैं, उन्होंने जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा है, उन्होंने एज एन एजुकेशनिस्ट हर एक के दिल को छुआ है और कहा है कि यू पीपल हैव टू बी इक्विप्ड, यू पीपल हैव टू बी स्ट्रांग so that you can make others strong and more fruitful. These young little hearts are here with us. They also need a future which will be brighter for them, which will be good for them. And they can see, because of our hard work, because of our service for them. I won't promise, but I assure that whatever way is possible, I will try to be with my brother Wali Rahmani, try to support him and try to help him. I also convey on this day from the Diocese of Calcutta, Church of North India, from my Bishop, Right Reverend Dr. Paritosh Canning, all the good wishes, all the blessings in God's name to Wali Rahmani and his entire team. Be blessed and let others receive the blessing through you. Thank you so much.
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। মঞ্চে যারা বসে আছেন আমাদের মাননীয় রাজ্যসভার এমপি নাদিমুল হক সাহেব, আবু তালেব রহমানী সাহেব, আমাদের আজকে ওয়ালি রহমানী সাহেব যে স্বপ্ন দেখছেন, যে উন্মিত আশা করছেন, তার যিনি স্বপ্নদ্রষ্টা এই বাংলার মধ্যেই আমাদের আলামিন মিশনের মাননীয় নুরুল ইসলাম সাহেব, আমাদের খ্রিস্টান ধর্মগুরু ফাদার মার্টিন, হিন্দু ধর্মগুরু বেদান্ত আশ্রমের মাননীয় স্বামী নিত্যানন্দ মহারাজ, আমাদের রিজভি সাহেব, আমাদের শিখ সম্প্রদায়ের মাননীয় তাসিম সিং সাহেবজি সহ যারা উপস্থিত আছেন, আমাদের এতাশামুল হক সাহেব সহ অনেকে উপস্থিত আছেন, সকলকে আমি বৌদ্ধ ধর্মের পক্ষ থেকেই আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। ওয়ালি রহমানী ভাইয়ের সম্পর্কে যে কথাগুলো আমাদের মাননীয় বক্তারাগণ বলেছেন, তাদের সাথে একমত হয়ে এই ক্যাম্পাসটা দেখার পরে যে উন্নীত নিয়ে, যে আশা নিয়ে আমাদের ছোট ভাই ওয়ালি কাজ শুরু করছেন, এটার প্রতি সত্যিকার অর্থে মন ভরে যাচ্ছে। আমরা জীবনের মধ্যে প্রত্যেকের স্বপ্ন দেখে একটা কিছু করবো, একটা স্কুল বানাবো, একটা আশ্রম বানাবো, একটা মন্দির বানাবো। তিনটে মন্দির আমি বানিয়েছি, টালিগঞ্জ, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি, আসাম, বঙ্গাইগাঁও, 4টা মন্দিরের দায়িত্বে আছি। কিন্তু যেটা বললেন, মন্দিরের মধ্যে উপাসনা হয়, কিন্তু উপাসনা করার জন্য যে মন তৈরি হবে সেটা হচ্ছে স্কুল, যেখানে আছে এডুকেশন। এই এডুকেশনের জন্য যে একটা ভাবনা, এখানে হয়তো অনেক বেশিরভাগ মুসলিম স্টুডেন্ট পড়বেন, হয়তো কিছু হিন্দু, কিছু অন্য মাইনরিটি স্টুডেন্ট পড়বেন, এটা বড় কথা নয়। আমাদের কাছে ধর্মটা বড় কথা নয়, আমাদের কাছে কর্মটা হচ্ছে বড় কথা। এবং আমরা বিশ্বাস করি ভগবান গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা মতে অহিংসায় পরম ধর্ম। আমি যখন প্রতি বছর আমার কালীগঞ্জ মনস্টারি থেকে প্রায় 100 জন স্টুডেন্টকে আমরা স্কলারশিপ দিই পার ইয়ার, অন্তত 1000 টাকা করে মিনিমাম আমরা দিই। কিন্তু সেখানে আমি সবসময় মাথায় রাখি যেন শুধু বৌদ্ধ ছাত্র না পাই, সেখানে যেন সকল ধর্মের ছাত্রছাত্রীরা পাই। এবং আপনারা জেনে সুখী হবেন, বেশিরভাগ কিন্তু মুসলিম ছাত্রছাত্রী বেশি থাকে, কারণ আমি একবার যদি নোট করি অনেক বেশি মুসলিম স্টুডেন্ট থাকেন। আমি যখন আলিপুরদুয়ারে দিই বা শিলিগুড়িতে দিই, সে একই অবস্থা। কিন্তু এই একটা ভাবনা নিয়ে আজকে যে একটা ক্যাম্পাসে একটা ঈদ গাতা হবে, আজকে তার ফাউন্ডেশন स्टूडेंट হবে, वित्त प्रस्तर হবে। तो ये काम के लिए काम जब बैठ रहा है हमारा शाहिया हमारा बुजुर्गों ने शाहीन स्कूल से जिन्होंने बोला एक कमरा देगा, स्कूल कमरा एक रूम दे देगा। तो हम सोच रहा हमारा इनकम तो ज्यादा नहीं है, कोई पूजा में जाता था 500 रुपया 1000 रुपया दक्षिणा मिलता हम लोग का, हर महीने एवरेज में 10,000 रुपया मिलता शायद हम लोग का। हम लोग सोचता बहुत बड़ा है गुरु जी, नहीं शायद अर्थात एवरेज में 10,000 रुपया मिलता। तो हम सोच रहा क्या करो, तो हम अगले 6 महीने के अंदर ये उन्नत अकेडमी के लिए 50,000 रुपया हमारा पर्सनल तरफ से हम डोनेट करूंगा, क्योंकि इधर से जो स्टूडेंट आएगा, इधर से कोई आएगा बेगम रोकेया साखावत, इधर से कोई आएगा एपीजे अब्दुल कलाम, इधर से कोई आएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, इधर से कोई आएगा श्री श्री रामकृष्ण परमहंसदेव, इधर से कोई आएगा अनागारिक धर्मपाल, इधर से कोई उठेगा जैसे गुरु नानक जी, जैसे स्वामी विवेकानंद। ऐसे चाहिए, क्योंकि बांग्ला में कहानी है, कवात है, घूमी आछे शिशुर पिता सब शिशुदेर अंतरे। इधर जो स्टूडेंट आ जाएगा वो एक दिन एक एक नुरुल इस्लाम, एक एक नादिमुल हक, एक एक बड़ा बनके हमारा ये समाज को, ये हमारा कौम को, ये हमारा देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। हम वाली रहमानी साहब उनका टीम को मुबारकबाद देने के साथ हमारा बात खत्म कर रहा हूँ। আমি আমার গুরুর শ্রীচরণে প্রণাম। উপস্থিত সমস্ত মঞ্চে উপস্থিত সমস্ত ডিগনিটরিজ, রাজ্যসভার এমপি এবং আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। জীবনের শিক্ষা শুরু হয় গুরুর কাছ থেকে, বলে গুরুকে ঈশ্বরের প্রতীক বলে। বলে ঈশ্বরকে তো আমি সরাসরি দেখতে পাই না, জানতে পারি না, গুরুর মাঝেই
সেই সত্যের প্রকাশ। তিনি কি করেন? তিনি আমাদের মনটাকে উন্মুক্ত করে দেন। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের একটা ছোট্ট কথা দিয়ে শুরু করি। স্বামী বিবেকানন্দ বলছিলেন, ইচ সোল ইজ পোটেনশিয়ালি ডিভাইন। আমরা সবাই সেই সত্যেরই অংশ, সত্যই আমাদের মধ্যে সকলের মধ্যে আছে, কিন্তু আমরা জানি না। সেই সত্যের প্রকাশ ঘটাতে হবে। সেই সত্যের প্রকাশ ঘটায় শিক্ষার দ্বারা। শিক্ষা হয় গুরুর কাছে। আমরা আধুনিক পরিভাষায় এটাকে স্কুল বলি, তবে স্কুল একটা ইনস্টিটিউশন, একটা বিল্ডিং, সেটা বড় কথা নয়। সব থেকে বড় কথা তার পেছনে যে মানুষটি দাঁড়িয়ে আছে তিনি। আমার ভালো লাগছে যে এখানে আসতে পেরে। আমি উমিদ একাডেমির সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, আলী রহমানকে ধন্যবাদ জানাই যে আলী রহমানই এই কম বয়সেই একটা স্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্ন দেখেছে সবাইকে নিয়ে বড় হওয়ার। বলে প্রত্যেকে আমরা নিজেদেরকে ছোট মনে করি। বেদান্তের একটা ছোট্ট কথা বলে, তুমি ছোট নও, তোমার মধ্যে সমস্ত কিছু আছে, সমস্ত শক্তি আছে। প্রথমে এই ভ্রান্তিটা আমাদের দূর করতে হবে। একমাত্র শিক্ষার আলো এই ভ্রান্তিটা দূর করতে পারে। এই ভ্রান্তিটা কি? যে আমি নিজেকে ছোট করে রাখি, আমি মনে করি কেউ আমার জন্য কিছু করে না, কেউ আমাকে কিছু দেয় না। আমি অন্যের থেকে প্রত্যাশা করতে থাকি, যে অন্যের থেকে প্রত্যাশা করার কিছু নেই। সমস্ত শক্তি পরমেশ্বর তোমার ভেতরে দিয়েই রেখেছেন, আগের থেকেই অন্তর্নিহিত আছে, তোমার ভেতরেই আছে। শুধু একটা সুযোগের অভাব। একটা সুযোগ পেলে সেই শক্তির প্রকাশ ঘটে। সেই সুযোগটা শিক্ষাই দেয়, সেই সুযোগটা গুরু করে দেন। সেই শিক্ষার স্বপ্ন নিয়ে আজকে উমিদ একাডেমি যাত্রা শুরু হচ্ছে। আমি আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং উমিদ একাডেমির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক, এই বলেই আমি এখানে শেষ করছি। হরি ওম। ধন্যবাদ স্যার। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहि व अला कुल्लि अहलिहि। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपके हमारे बरादर बार बार कह रहे थे शॉर्ट स्पीच। शायद इससे ज़्यादा शॉर्ट में और कुछ ना कर सकूं, क्योंकि वक्त के दामन में भी गुंजाइश नहीं है। सबसे पहले मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूं अपने भाई वली रहमानी साहब की खिदमत में और उनकी टीम की बेहतरीन कदम उठाया है उन्होंने, और इस कदम की वजह से बहुत सारी मुश्किलात इंसान की फ्यूचर में ख़त्म हो सकती है। जिसमें से एक जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गुर्बत ख़त्म होती है पढ़ाई से। जिसके पास इल्म होगा उसके पास गुर्बत नहीं होगी। दूसरी चीज़, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, उनके आशिक हैं, हमारे आका हैं वो। उनसे अगर पूछा जाए कि इल्म क्या है, तो नबी फरमाते हुए दिखाई देते हैं कि अल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म एक ऐसा फ़र्ज है जो हर मुस्लिम और मुस्लिमा पे वाजिब है, फ़र्ज है। तो जिस तरह से हमारी नमाज फ़र्ज है, हज फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है, वैसे इल्म हासिल करना भी फ़र्ज है। मैं कलकत्ते से जब चल रहा था तो मैंने देखा बड़ी ताख़ीर हुई। ड्राइवर साहब से पूछा कि कितनी दूर पे है ये प्रोग्राम, तो कहा 35-40 किलोमीटर दूर। आइए पूछते हैं कि इल्म हासिल करने के लिए नबी क्या फरमा रहे हैं कि इल्म हासिल करना हो तो कहाँ तक जाना चाहिए। तो नबी का कौल मिलता है कि अगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना हो तो चीन तक जाओ, लेकिन इल्म हासिल करो। आज लोग थक जाते हैं, बोलते हैं कि ये हमारी एज नहीं है पढ़ने के लिए। आइए ये भी कौल पूछ लेते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम इल्म कब से और कहाँ तक ये इल्म हासिल करें। तो नबी का कौल नज़र आता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ की आगोश से लेकर कब्र की मंजिल तक। तो यानी आपके लिए पूरी अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है, और ये कौल के साथ मैं दुआओं के साथ बात खत्म करूंगा कि आप ये 250 ml 300 ml का 250 ml का बोतल है। इस बोतल में आप
300 ml पानी नहीं डाल सकते, 50 ml गिर जाएगा। आप 1 लीटर की बोतल में 2 लीटर पानी नहीं डाल सकते। लेकिन वाहिद इल्म एक ऐसी चीज है, जितना आप भरिएगा आपको प्यास और बढ़ती जाएगी उसकी। तो मेरी दुआएं हैं वली रहमानी साहब के साथ, क्योंकि हर आदमी ने कुछ ना कुछ दिया। मेरी खिदमत में यही है कि दुआओं से नवाजूं मैं इंशाल्लाह वली भाई को और उनकी टीम को कि मुस्तकबिल में काम करें और बेहतर से बेहतर काम करें, ताकि जहालत इस माशरे से दूर होती रहे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्श राजक रेहा कुन रहीम, अमा बख्श बख्शिंदे दस्तगीर, खता बख्श रोजी देहो दिल पजीर, शहनशाह खूबी देहो रहनमू, के बेगुनो बेचुनो चू बेनमू, न साजो न बाजो न फौजो न फर्श, खुदा बंद बख्शिंदे आशे हर्ष, जहाँ पाक जबरस्त जाहर जहूर, उजामी देहो हम चू हाजर हजूर। ये चंद लाइनें थी जो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बार लास्ट में औरंगजेब को एक खत लिखा था जिसका नाम था जफरनामा। तो खत शुरू करने से पहले उन्होंने अल्लाह की बंदगी में चंद लाइनें लिखी थी। तो ये उसी लाइनों में से मैंने कुछ लाइनें आपके सामने रखी हैं। तो आज हमारे अंदर मौजूद हैं ऑनरेबल हमारे राज्यसभा के स्पीकर और जितने भी डिस्टिंग्विश्ड एंड डिग्निफाइड गेस्ट्स, हमारे ऑल द रिलीजियस गुरुज, अबू तालिब रहमानी साहब, अरुण ज्योति भिक्कू साहब, फादर माती साहब और भी जितने मौजूद हैं, मेरे सामने बैठे सारे ऑनरेबल गेस्ट, हमारे भाई बहन और बच्चे, सबसे पहले मैं सबको सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्कार और जय हिंद कहता हूँ। आज टुडे first of all, I convey my gratitude to the organizers for inviting me to be a part of this beautifully organized and well coordinated foundation stone laying ceremony. तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जिसका बहुत दिनों से, बहुत कहिए 2-4 सालों से सब्री से इंतजार था कि आज वो शुभ मुहूर्त आ गया है जब हम यहाँ फाउंडेशन स्टोन के लिए, लेइंग स्टोन के लिए आए हैं। ये सिर्फ स्कूल का ही फाउंडेशन स्टोन नहीं है, वो हजारों बच्चों के लिए भी जिनका भविष्य यहाँ तैयार होगा, उनका भी आज हम यहाँ आधारशिला रख के जाएंगे, ताकि वो देश को एक नए आयाम पे और एक ऊंचाइयों तक लेके जा सकें। आज विश्व में हमने जगह जगह स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का निर्माण कर रखा है, ताकि एक सही शिक्षा और ज्ञान का प्रसार हो सके, जिससे सारे विश्व में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार किया जा सके। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या इन संस्थानों द्वारा दी गई शिक्षा से मानव संस्कारों का स्तर इतना ऊंचा होता है कि जिससे मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके? ये भी एक सोचने वाला बहुत बड़ा सवाल है और हमें इस पे गौर करना चाहिए। हम जब गुरु नानक इस धरती पर आए तो उन्होंने उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक हालातों का जायजा लिया और उन्होंने इस निष्कर्ष पे निकले कि आज जो समाज की दुर्दशा है, जो उस समय के दुखद हालातों का मूल कारण है, वो ये है कि उस समय इतने ऊंचे संस्कारों के शिक्षक नहीं थे जो भटके हुए और अंधविश्वासों में जकड़े हुए लोगों को सही मार्ग पर ले जा सकें। वो चाहते थे शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों के अंदर एक इमेजिनेशन हो, एक जिम्मेवारी का एहसास हो और सत्य के मार्ग पर चलने की भावना पैदा हो। शिक्षक और स्टूडेंट्स का रिलेशन परस्पर इतना अच्छा हो कि ये बच्चे आगे जाके मानव कल्याण के लिए कुछ कर सकें। वो नहीं चाहते थे कि शिक्षक ऐसे हो जो विद्या को सिर्फ बेचे और अपना जीवन निर्वाह करें। तो एक जगह वो इसको ग्रंथ साहब में कोट भी करते हैं कि मनमुख विद्या बिकरदा बिक खट्टे बिक खाए। कहने का मतलब है कि जो इंसान
जो भी टीचर इस तरह के चरित्र का है, जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए विद्या को बेचता है, वो एक तरह से अपने जीवन में जहर ही कमाता है और जहर ही खाता है। और वो चाहते थे कि व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, तो उन्होंने ग्रंथ साहब में ही एक लाइन लिखी, विद्या विचारी ता परोपकारी, मतलब ओनली दैट काइंड ऑफ एजुकेशन इज वर्थ which makes a man socially useful and he spends his life in the welfare of mankind। तो इस तरह का किरदार हमने पाया वली रहमानी में, जिसे हम कहें कि जैसे 23 साल की उम्र में सरदार भगत सिंह शहीद हो गए थे, मैंने 23 साल की उम्र में जिंदा शहीद कहना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने अपने सारी खुशियां, सारे जो सुख है उनको त्याग के एक मकसद अपने जीवन में लिया, और वो है कि आने वाले कल का भविष्य कैसे संवारना है, देश को आगे कैसे लेके जाना है। बहुत बड़ी सोच है इस छोटी सी उम्र में। और इतनी सी बातें रखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। एक बात अंत में कहना चाहूंगा कि शिक्षा और संस्कार दो जीवन के मूल मंत्र हैं। शिक्षा आपको किसी के सामने झुकने नहीं देती, संस्कार आपको किसी के सामने गिरने नहीं देते। सारे ही हमारे जो गुरु हैं, धर्म गुरु, और जो हमारे गणमान्य व्यक्ति आए हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की हैं, समझने वाली हैं, और मैं अपनी तरफ से वली रहमानी को और उसकी टीम को और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आई विश ऑल द सक्सेस टू हिम इन द वर्ल्ड, कि वो आने वाले कल में हमेशा एक सितारे की तरह, एक चांद की तरह, एक सूरज की तरह चमकता रहे। थैंक यू वेरी मच। रफ़ीउद्दीन रहमानी साहब और उनके अहले खाना, जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अबू तालिब रहमानी साहब, जनाब नदीमुल हक साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, जनाब नूरुल इस्लाम साहब, जनाब महर अब्बास साहब, जनाब रिजवी साहब और जनाब अब्दुल कदीर साहब बीदर, और ख़ास तौर पे अजीज़ी जनाब मोहम्मद वलीउद्दीन रहमानी साहब। तालीम के सिलसिले में पूरी दुनिया में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो लोग तालीम से जुड़ते हैं या तालीम का चिराग जलाते हैं, वो अंधेरों के खिलाफ एक जंग छेड़ते हैं और दुनिया से अंधेरे को मिटाने का काम करते हैं। अजीज़ी जनाब मोहम्मद वलीउद्दीन रहमानी साहब ने अपनी कम उम्री के ज़माने में जिस तरह के खिदमात अंजाम दिए हैं और जैसे जैसे काम कर रहे हैं, मुझे याद आ रहा है उनका वो बचपना जब मैंने उन्हें गोद में खिलाया था, और मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत याद आ रही थी है कि जब उन्होंने अपनी दुआओं के साथ अपने नाम के साथ उनका नाम रखा था, और उसी वक्त उनके कदमों में वो बात दिखने लगी थी कि पालने में पड़ा ये बच्चा अपने मुबारक कदम को लेकर जंगलों में जाकर इल्म का चिराग रोशन करेगा। जिस फिक्र, जिस मोहब्बत, जिस जुनून के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर हम तमाम लोग शुक्रगुजार होंगे इनके कि ये नई नस्ल को तालीम से आरास्ता करेंगे, लोगों को हुनरमंद बनाएंगे, लोगों को तराश कर निखार कर मुल्क की तरक्की के राह के हीरे बनाएंगे। इसलिए कि जो लोग इल्म का काम कर रहे हैं, मुल्क की आज़ादी के बाद आज 45 करोड़ बच्चे इस मुल्क में हर वक्त पाए जाते हैं, और ऐसे माहौल में 8 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल का गेट नहीं देखा। 3.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो पैदाइश के बाद मजदूरी से जुड़ रहे हैं। ऐसे माहौल में शहर से दूर निकलकर गैर आबाद शहर में कमजोर तबका के लिए इल्म का ये चिराग जलाना सिर्फ और इस बात को साबित करता है कि मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा।
मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। मैं और रहमानी फाउंडेशन, रहमानी 30 उनके साथ हैं और हर तरह से उनके लिए कामयाबी की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनको नजर बद से बचाए, हसद से बचाए और तरक्कियों के राहों पर अपनी नेमतों से, रहमतों से, तहजीबों से, दीनदारी से नवाजता रहे। वस्सलामु अलैकुम। लायक एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमान और सामाईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे खुद फिक्र न हो अपने आप को बदलने की। अभी मौलाना ज़फ़र साहब बहुत अच्छी बात कह गए कि ये वली बाबू से ज़्यादा उनकी वालदा के दुआओं का ये समरा है कि आज हम और आप यहाँ हैं। माँ जब, चूँकि आज माँ को सबसे पहले नेक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। माँ जब बच्चे को शिकम में रखती है और वो जब तिलावत करती है ना, उसका असर बच्चे पे पड़ता है। जब वो दुआ करती है तो बच्चे पे असर पड़ता है। जब वो तहज्जुद पढ़ती है तो बच्चे पे असर पड़ता है। जब वो दूध पिलाती है बावजू होकर के तो बच्चे पे असर पड़ता है। जब वो नमाज पढ़ के बच्चे को खिलाती है तो वो असर पड़ता है। तो मैं कहता हूँ ये मॉडर्न जमाने में अगर किसी मॉडर्न वली सिफत इंसान को देखना है तो वलीउद्दीन रहमानी को देखना, ये खूबी है। क्योंकि ये चीज मैं देखा हूँ इनके अंदर कि वक्त की तंगी दामन गीर है। मैं भी काफी अरसे से इनको जान रहा हूँ, इनकी खूबियों को देख रहा हूँ। तो मैं अपनी बहनों को, माओ को बड़े अदब से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप भी चाहती हैं कि आपका बच्चा इस वली रहमानी जैसे चांद की तरह, सितारे की तरह चमके, तो आप भी अपने बच्चे को दूध पिलाने से पहले वाला जो वक्त है उस वक्त टीवी के ऐसे चीज पे ना गुजारें जो हमारे तहजीब के खिलाफ। हम उस पर गुजारें जिससे बच्चे पे असर पड़े। कुछ ऐसी कौम है ना उन दिनों बच्चे का जब परवरिश हो रहा होता है तो माहौल से अलग, आवाज से अलग, ऐसी बातों से अलग जो बच्चे पे असर पड़े, वो 9 महीना गुजारती हैं। जब आप तहकीक करेंगे तो पता चलेगा वो कौन कौन है। जीव अपने बच्चे को जब वो शिकम में रखते हैं तो 9 महीना माहौल से अलग रखते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सुकून वाले माहौल में रहती हैं। आज इस माहौल में यहाँ पर आने के बाद ये पता चला कि जनाब वली रहमानी साहब का ये काम बड़ा नहीं है, इनके माँ के दुआओं का ये समरा है। और उनके पीर जनाब वली रहमानी साहब अलैहि रहमत व रिज़वान के दुआओं का ये समरा है। मेरी भी दुआएं इनके साथ है। साथ में हाशमिया शाहीन कोलकाता की जानिब से हम इनके साथ हैं। हाशमिया इंटरनेशनल एकेडमी का तमाम मेंबर वली रहमानी साहब उनके टीम के साथ है। चूंकि हजरत बोल कर गए कि रात के अंधेरे में रोशनी, मतलब सिमत देना, रास्ते को दिखाना, रोशनी। तो एक रास्ता एनएच पर है, उस एनएच को और अच्छा बनाना, हमारे एमपी साहब यहाँ बैठे हैं, फिर पास करा लेना ये कमाल नहीं है, नए रास्ते को बनवा देना ये कमाल है। तो इन्होंने नया सिमत दिया है। आज यहाँ पे बुनियाद उम्मीद एकेडमी के लिए इस जगह को जिन्होंने दिया है ये ज्यादा काबिले तहसीन है। और जो लोग अभी 100 रुपया का इनको सपोर्ट करने वाला 5 साल बाद 100 करोड़ देने वाले से बेहतर है। क्या मैं ये जहन देता हूँ, क्योंकि उम्मन बुनियादी इसमें जो ऐसे जलसे होते हैं हमारे, उसमें हम लोग जाते हैं तो लोगों को ये जहन देते हैं और स्टेज में ही अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े मजमे से 50 लाख रुपए आ जाते हैं। हम लोग ये जहन देने की कोशिश करते हैं। तो आप 3 तरह से मदद कर सकते हैं। एक दुआ, दूसरा कलम, अल्लाह ने आपके कलम में वो ताकत दी है कि आप उस ताकत से चाहे तो इस इदारे को उरूज तक पहुंचा सकते हैं। और तीसरा, रब ने आपको जो है माल दौलत दिया है, उससे भी किसी अब अहबाब को बोल करके एक ईंट देने वाला कल एक बिल्डिंग बनाने के बराबर है।
नूरुल इस्लाम साहब के साथ लोग जुड़ने के लिए तैयार है। वो कहते नहीं हम अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। क्या भाई मैं खुश कर रहा, मैं खुश हूं इसलिए कि जब ये 90 के दहाई में शुरू किए थे उस वक्त ये सिमत बनाना बड़ा मुश्किल था। आज तो उनके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं हमें जरूरत नहीं है। जनाब अब्दुल कदीर साहब जब शुरुआत किए थे एक कमरे पर, चूंकि उन्होंने डॉक्टर फखरुद्दीन साहब का नाम ले लिया, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद बाला फरमाए, वो हमारे आइडियल थे, मेंटोर जो बोलते हैं जनाब महबूब अख्तर साहब को वली साहब बोले, तो मेरे लिए वो मेंटोर, मैंने उनको अपना उस्ताद माना। उन्होंने ही सबसे पहले जहन दिया, रोशन ज़मीन इमामत कब तक करते रहोगे, आओ कुछ काम करते हैं। उन्होंने जहन दिया और इसी बंगाल में, चूंकि बंगाल में रहते हैं तो यहाँ से 20-30 किलोमीटर की दूरी पे हरुआ है, वहां पे 12 बच्चों पे हम भी तालीम शुरू की है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1200 बच्चे वहां माँ क़याम क़याम हॉस्टल के साथ बच्चे पढ़ रहे हैं 12वीं जमात का। और शाहीन एकेडमी कोलकाता का ब्रांच भी वहां चल रहा है। नीट के बच्चे भी वहां बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल की तैयारियां कर रहे हैं माशाल्लाह। और यही रही, हम जब शुरुआत किए थे तो 12 धूर जमीन होता है, एक धूर बोलते हैं, धूर 1 कट्ठा से ज्यादा, इतने जमीन पे शुरुआत हुई। आज 120 बीघा जमीन है। उस वक्त लोग जुड़ने से भागते थे, तो इसलिए मेरे जहन में ये बात आई कि आज ये जहन देना जरूरी है कि आप दुआ भी दें। अल्लाह ने आपके कलम में ताकत दी है, कलम के जरिए, जबान के जरिए, दुआ के जरिए साथ दें इंशाअल्लाह। चूंकि हमारे मुरब्बी जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने अल्लज़ीना, हजरत यहाँ बैठे, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैल वन्नहार सिर्रन व अलानिया, 2 तरीके हैं मदद करने के। एक एलानिया, एलानिया इसलिए कि लोगों के दिल में जज्बा पैदा हो, शौक पैदा हो, ज़कात छुपा के भी तो दिखाएंगे ताकि न देने वाले के दिल में शौक पैदा हो। तो हजरत तो इससे भी ज्यादा करेंगे, मुझे यकीन है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे इसलिए ऐलान किया कि आप लोगों के दिलों में जज्बा पैदा हो। तो ये मेरा भी हक बनता है कि मैं भी दुआ से भी, और इंशाअल्लाह ताला मैं बेशक मैं भी शाहीन की तरह बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों की दुआएं रही तो इंशाअल्लाह ये 2012 में शुरुआत हुआ था, आज 1200 है, तो आगे साल इंशाअल्लाह और बच्चे बढ़ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे लाइन में, जगह की तंगी की वजह से वहाँ पर अभी 50,000 स्क्वायर फुट पे बिल्डिंग है, इंशाअल्लाह आइंदा साल 1 लाख पे हो जाएगा। तो हम भी इंशाअल्लाह 1,01,000 रुपया चाहते हैं कि हमारे तरफ से उम्मीद एकेडमी को दिया जाए, और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारी भी दुआएं हैं, आपसे भी आखिर में जाते जाते ये दुआ है, आप ये इरादा करके जाना आज कि अगर अल्लाह ने माल दिया है तो उम्मीद के साथ आज एक ईद लगाओगे ना। सब लोग बोल के बच्चों की मुस्तकबिल, मैं कहता हूं नस्लों की, खानदानों के मुस्तकबिल को बदला जाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ से खानदानों, घराने के मुस्तकबिल को बदला जाएगा। चूंकि मैं मजदूर बना में हजरत शहर में एक मोहल्ला है जो काफी मजदूर लोग रहते हैं, रहने के लिए इस तरह का कायदे का घर भी नहीं है। उन बच्चों के दरमियान में एक दिन इशाबाद किया था, इशाबाद किया तो देखा अजीब माहौल में है, लेकिन जब वो बच्चा हमसे गुफ्तगू किया, बोला मैं उम्मीद एकेडमी पर पढ़ता हूँ, दिल खुश हो गया। फिर दूसरे ही दिन में उम्मीद एकेडमी गया, देखा वहां रहने का अंदाज उनका अच्छा अलग था, लेकिन जब उम्मीद एकेडमी गया तो इतना बेहतरीन। वो एक और बात आपकी जरूरी है, एक अच्छी खूबी क्या देखा कि वहां पे बच्चे जो है ना बावजू पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, बावजू, चप्पल पहन के नहीं पढ़ते, चप्पल बाहर रख देते, अंदर जाते, बावजू रहते। क्या रहम दिया है जनाब वलीउद्दीन रहमानी साहब ने कि बच्चे कुरान नहीं कोई भी किताब पढ़े तो बावजू पढ़े, ताकि उनके ज़हनो कल्ब में तमाम बातें उतर जाएं और वो चांद और सितारे की तरह चमकने वाले। क्या पैगाम इन्होंने दिया। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनको, इनके तमाम अहबाब को, तमाम मुआविनीन को इसी तरह हमेशा, आज ही नहीं हमेशा जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। Good afternoon to one and all present over here. আজকে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি একটা স্বপ্নের খুব সামনে। সেই স্বপ্নের নাম উমিদ একাডেমি। Umeed has its roots in Urdu literature, signifying an air of expectancy, a hope, a dream. It offers a holistic development of the destitute and poor children alongside helpless orphans to enable them to take control of their lives. The mission is to develop these children into assets of the society.
Every child graduating from Umid Academy shall have the capability to become a future global leader. To fulfill this vision, we try to provide good education, balanced food, clothes, medical facilities, boarding, self-care, and self-defense martial art training. We can boast that our children have made us proud by winning several state-level competitions, showcasing their talents. When a foundation, a trust, makes this journey with such lofty ideals, the ascent is always towards achieving the excellence. শুরুটা খুব সহজ ছিল না। 3টে বাচ্চা নিয়ে একটা 1000 স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাটে যাত্রা শুরু হয়েছিল উমেদ একাডেমির। তারপর আজ। The beginning was humble and modest. What started 4 years ago at a 1000 square feet apartment today aspires to kiss the sky. On a mission to end poverty with modern and contemporary education and for a better tomorrow is the exalted ideas of our beloved founder, Mr. Wali Rahmani, who children fondly call Abbaji. We are proud of you, Abbaji. This is my brief but very pleasant duty today to welcome again our chief guest, Janab Ghulam Rabbani, who has sent his blessings. Guest of honor, Janab Nadim ul Haq, Janab Shokat Mullah, Janab Faz Ahmed, Mr. Vijay Kumar. We also welcome our distinguished guests, Janab Nurul Islam, Janab Abdul Qadir, Janab Mamun Akhtar, Maulana Abu Talib Rahmani, Father Martin Pakhare, Dr. Arunjyoti Bhikkhu, Swami Nirgunananda Puri, Maulana Syed Meher Abbas Rezvi, Sri Tarsim Singh, and Mufti Anwar Khan Sargiro. We bestow our special thanks and respect to Ma'am Asma Alam, Ma'am Ghazala Imam, Sir Yusuf Haq, Ma'am Sabana Anwar, Abhishek Mukherjee sir, and to our torchbearer, Mr. Wali Rahmani sir. We also offer our heartfelt thanks to our distinguished dignitaries who are gracefully attending this august gathering. I express my sincere thanks and gratitude to all the patrons. এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের সকলকে উমিদ একাডেমির পক্ষ থেকে অসংখ্য অভিনন্দন। With the auspicious stone laying ceremony in this site, where we dream to have one of the finest residential schools, where we will open the door to the aspiring students of the locality to get a chance for proper development and education from budding stage. I am working in this institution only for past 4 months, but in this short stint, I was overwhelmed with the huge human activities the institution is offering through its daily course. যাদের কথা এখানে না বললে আমার বলাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তারা আমাদের টিচাররা, আমাদের স্টাফ মেম্বাররা নিরলস পরিশ্রম করে দিনের পর দিন নিঃস্বার্থভাবে তারা আমাদের শিশুদের বড় করে তুলেছেন। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।
Every teacher and staff member is fulfilling their duties with utmost dedication. I am grateful to Almighty for giving me a chance to be a part of this exemplary mission. I wish we all grow and flourish together in the coming years. That is our umid. That is our hope, our vision. In the words of Poet Laureate Rabindranath Tagore, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান সেথা মুক্ত। God bless our academy. সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার সকলের সাথে দেখা হবে এইখানে। নমস্কার। हेलो, सभी को आदाब, नमस्कार। एक छोटा सा नज्म उम्मीद के लिए आप सबों की कभी चाहूंगा। उम्मीद है हम लोगों की उम्मीद बनेंगे, हारे हुए हौसलों के लिए जीत बनेंगे। उम्मीद है हम लोगों की उम्मीद बनेंगे। नफरत नहीं होगी, रहेगा प्यार ही प्यार जहां। गुर्बत मिटाएंगे, बनाएंगे नई दुनिया। नफरत नहीं होगी, रहेगा प्यार ही प्यार जहां। गुर्बत मिटाएंगे, बनाएंगे नई दुनिया। मजलूमों के हम ख्वाबों की ताबीर बनेंगे। मजलूमों के हम ख्वाबों की ताबीर बनेंगे। हारे हुए हौसलों के लिए जीत बनेंगे। उम्मीद है हम लोगों की उम्मीद बनेंगे। इंसाफ पाने को इंसाफ देगा अगर सदा, अपने कलम के जरिए हम बनेंगे रहनुमा। इंसाफ पाने को इंसाफ देगा गर सदा, अपने कलम के जरिए हम बनेंगे रहनुमा। अल्लाह के बातों की हम तफसीर बनेंगे। अल्लाह के बातों की हम तफसीर बनेंगे। हारे हुए हौसलों के लिए जीत बनेंगे। उम्मीद है हम लोगों की उम्मीद बनेंगे। उम्मीद है हम लोगों की उम्मीद बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मुझे आके यहाँ बहुत खुशी हो रही है कि चीफ गेस्ट तो दरअसल हमारे वजीर गुलाम रब्बानी साहब हैं, लेकिन एक तरफ मेहमान रब्बानी और एक तरफ देखिए मेज़बान रहमानी, तो क्या काफिया और रदीफ मिल रहा है। खैर, हमारे नौजवान साथी वली रहमानी को एक शेर के साथ मैं यहाँ पर हौसला के साथ उम्मीद भी दिलाना चाहता हूँ, और ये शेर उन पर और उनकी टीम पर पूरा उतरता है। और मैंने ये शेर पार्लियामेंट में भी एक दो बार पढ़ा है कि यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख तो हिलाना होगा। मतलब you resources won't come to you automatically, you have to shake the branches of time। और जैसे सब लोग कह रहे थे कि नूर के बारे में, रोशनी के बारे में, तो अंधेरों को बुरा कहने से कुछ नहीं होता, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। वली रहमानी साहब यहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए, इस तरफ से
हमारे डॉक्टर अरुणजीत भिक्कू, हमारे स्वामी जी बैठे हुए हैं, हमारे मौलाना रोशन साहब बैठे हुए हैं, हमारे भाई मेहर अब्बास रिजवी साहब हैं। हम लोग तरसेम सिंह की बानी सुने, फादर मार्टिन की स्पीच सुने, हम लोग यहाँ पर रहमानी फाउंडेशन से आए हुए रहमानी साहब की बातें सुने। हमारे भाई अबू तालिब रहमानी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कही। हमारे डीसीपी साहब फैयाज साहब यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने शॉर्ट में कहा लेकिन स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट। और हमारे नूरुल इस्लाम साहब हैं, उन्होंने, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो पहले ही से एक खाका ऐसा तैयार कर चुके हैं अल अमीन फाउंडेशन के जरिए, अल अमीन मिशन के जरिए, जिसको उम्मीद फॉलो कर सकता है और उनके नक्शे कदम पर भी चल सकता है। काफ़ी जितनी मुश्किलें उनको हुई हैं, अगर इनको भी होती है तो ये कम से कम एक आदमी तो है जिससे वो मशवरा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शाहीन, इदारा शाहीन से आए हुए बिदार से यहाँ पर कादिर साहब भी हैं, और उनकी भी जो, उनका जो स्ट्रगल है, उनकी जो जद्दोजहद है, वो भी हमारे वली रहमानी साहब के लिए एक नक्श कदम है, एक हौसला की बात है। और उनके मेंटर यहाँ पर मामून अख्तर साहब भी मौजूद हैं। वो तो पहले ही से हौड़ा में बहुत ज़बरदस्त स्कूल चला रहे हैं गुड समरिटन के नाम से, और पूरे दुनिया में जो 1 से 20 नंबर में जो एनजीओ के जरिए स्कूल चलता है उसमें उनका नाम है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से किसी भी इदारे को चलाने के लिए 2 चीज बहुत जरूरी होती है। एक कि वो जो भी जमाने का बेस्ट माइंड है, जो बेस्ट दिमाग है, उससे वो मशवरा करे, वो इकट्ठा करे। और दूसरी चीज कि अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस करे। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन के लाइन में, या जो वली रहमानी साहब का जो ख्वाब है कि कैसे कर करके इस इदारे को, इतनी बड़ी ज़मीन है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़ी ज़मीन इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इसको कैसे एक फलता फूलता लाइव इदारा बनाए, उसके लिए जो माइंड्स की उनको ज़रूरत है वो सब स्टेज पे बैठे हुए। उनको अब ज़रूरत है कि अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कैसे लेस करें, कैसे वो स्मार्ट क्लासरूम लेके आए, कैसे वो ऐसी लेबोरेटरी लेके आए जहां पर रिसर्च हो, कैसे वो अपने क्लासरूम्स को, अपने बच्चों को उस टेक्नोलॉजी से पढ़ाए जिसमें उनकी सबसे ज्यादा पोटेंशियल को रियलाइज किया जाए। ये उनको जरूरत है। हम लोग खुशनसीब हैं कि बंगाल में पैदा हुए हैं और उनको कुछ एडवांटेज है बंगाल का। अगर यही चीज हिंदुस्तान के किसी और प्रांत में होता तो हो सकता है इतनी आसानी से और इतनी खुश उसलोबी से उनको कामयाबी नहीं मिलती। आज जो पूरा मुल्क का माहौल है, हमारे बिदार साहब है, वो कहेंगे कि पहले जितना आसानी से वो काम कर रहे थे, आज शायद थोड़ा सा उनको मुश्किल हो रही है। जो और भी रियासतों से आए हैं जहाँ पर एक सियासी जमात हम लोग पर काबिज है, उसकी जो सोच है, उसकी जो थिंकिंग है, वो हम लोग से थोड़ा मुख्तलिफ है। हम लोग तो उस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और बड़े हुए हैं जो हम पर फर्ज कर देता है कि हम लोग अपने बचपन के हिंदुस्तान को बचा के चलें, हमारे बच्चों को हम लोग वही हिंदुस्तान दें जो हम लोग अपने बचपने में पाए थे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफी बच्चे लोग धूप में, और उनकी गार्जियन हजरात जो हैं वो भी धूप में बैठे हुए हैं। मुझे माफ कर दिएगा, इनको भी माफ कर दिएगा। आइंदा से ये कोशिश करेंगे कि आपको इतनी तकलीफ नहीं हो, और इतने इसके लिए भी हम ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे। बस 2-3 बात कह करके ये अपनी बात खत्म करते हैं कि अभी मौलाना रोशन साहब कह रहे थे, उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, हमारे भिक्कू जी ने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया। ये तो सब चीज अच्छी बात है, लेकिन आप लोग क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? आप लोग क्या दे रहे हैं ये तो बताइए। कुछ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बंदी साहब, लगता है खाने पीने का इंतजाम नहीं किया। किया है, खाने पीने का इंतजाम है, थोड़ा जोर से बोलिए। दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ठीक है,
आपकी इस ऊंची आवाज पर लब्बैक कहते हुए मैं भी कहता हूं कि एमपी लैड फंड से मैं 10 लाख रुपया दूंगा। ज्यादा बात टूल देने की जरूरत नहीं है। आप लोग जब अभी आए हैं, मेरे ख्याल से कोई भी चेकबुक तो लेके आया नहीं होगा, लेकिन घर जाके जरूर चेक भेज दीजिएगा। और इन पर अपनी बात खत्म करते हुए इस उम्मीद के साथ कि इनको अल्लाह कामयाबी दे, हम लोग सबकी दुआएं दे, इनकी वालदा की दुआ तो है ही, बाकी कौम की वालदाओं को भी इनको दुआ मिले, और ये जो इदारे का ख्वाब सोचे हैं, ख्वाब देखें, उसको अल्लाह एक दिन शर्मिंदा ताबीर करे। बस हम लोग का क्या है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, वतन है हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रथमेই আমি সালাম জানাই, নমস্কার জানাই। আজকে উমিদ একাডেমির পক্ষ থেকে এই শুভ সকালে আজকে যে অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানের প্রিয় সঞ্চালক, মঞ্চে উপস্থিত আমার খুবই শ্রদ্ধেয় বিশিষ্ট অতিথিগণ, আমার সামনে বিশেষ করে যারা প্যারেন্টস যারা আছেন, অভিভাবক যারা আছেন, অন্যান্য এই উমিদ একাডেমির যারা কর্মকর্তা যারা আছেন এবং বিশিষ্ট জনেরা যারা আছেন, তাদের সকলকে প্রথমেই আমি ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ, আপনাদের অভিনন্দন, আপনাদের সালাম জানাচ্ছি। আমি আজকে এখানে আসতে পেরে খুবই গর্বিত যে বিশেষ করে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা তারদার এক প্রত্যন্ত গ্রাম মৌসুলের এমন একটি জায়গায় এই ধরনের একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যেখানে আমাদের ছেলেমেয়েরা এখানে অনেক বেশি হাইলি এডুকেটেড হবে এবং ভালো পড়াশোনা করতে পারবে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান যেভাবে গড়ে তোলা হয়েছে, তার জন্য আমি উমিদ একাডেমির কর্মকর্তাদের আরো একবার ধন্যবাদ, আরো একবার অভিনন্দন, আরো একবার ভালোবাসা জানাচ্ছি। এবং বিশেষ করে আমরা দেখছি আমাদের মঞ্চে যারা বসে আছেন, অনেক বড় মনের মানুষ, অনেক বড় বড় মানুষজন এখানে বসে আছেন। আমার বিধানসভায় অন্তত যে তারা এখানে এসেছেন, এটা আমি অন্তত ব্যক্তিগতভাবে আমি খুবই গর্বিত। এবং আপনারা জানেন যে বিশেষ করে এই ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকার সবচাইতে গরিব এবং পিছিয়ে পড়া এবং প্রান্তিক মানুষ আমাদের এই তারতা অঞ্চলে বসবাস করে। আমি উমিদ একাডেমির কর্মকর্তাদের কাছে আমি আবেদন করব যে বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার ছেলেমেয়েরা, তাদেরকে যেন একটু বিভিন্ন একটু বেনিফিট দেওয়া হয়, একটু কনসিডার করা হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যাতে তারা এখানে পড়াশোনা করতে পারে, তারা যাতে সুযোগ পায়, সেই বিষয়টাকে দেখার জন্য অনুরোধ করব। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পক্ষ থেকে বিশেষ করে আমরা যারা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ আছি বা আমাদের যারা কর্মকর্তারা আছেন, আমার সহকর্মীরা যারা আছেন, তারা পূর্ণাঙ্গভাবে এই উমিদ একাডেমিকে সহযোগিতা করবে এবং কোথাও কোনো সমস্যা হলে সরাসরি আমাদের এখানে মাননীয় উপপ্রধান রাকেশ রায় চৌধুরী আছে, আমাদের প্রধান আছে তুলসী মুন্ডা সহ আমাদের বিশিষ্ট অতিথিরা আছেন, আমাদের নেতৃত্ব আছেন। যে কোনো সমস্যায় আমরা আপনাদের পাশে থাকবো, এই কথা আমি আজকে সকলের সামনে দিলাম। সবাই ভালো থাকবেন, সবাই সুস্থ থাকবেন। আর দূর দূরান্ত থেকে যারা আজকে এসেছেন, সুদূর কলকাতা থেকে শুরু করে আরো অনেক দূরে, তাদের সকলকেই আরো একবার সালাম জানিয়ে, ভালোবাসা জানিয়ে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आए हुए सारे मेहमानों को वक्त की कमी है इस वक्त, वरना मैं एक एक का नाम लेता। जो लोग स्टेज पे मौजूद हैं और जो लोग स्टेज के सामने मौजूद हैं, आप सभी को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुख्तसर रखने की कोशिश करूँगा अपनी स्पीच को मैं। मुझे याद है वो दिन जिस दिन 3 बच्चे और मैं 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में हम थे, इसके अलावा और कोई नहीं। तो उस दिन सोच बहुत छोटी थी, और मैं कहूँगा फिर से ये बात कि सोच बहुत छोटी थी पर नियत इतना बड़ा था। और क्योंकि नियत इतना बड़ा था तो अल्लाह ने सोच को भी बड़ा किया और काम को भी बड़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह।
और जब तक हमारी सोच और नियत बनी रहेगी इंशाल्लाह काम बढ़ता जाएगा। मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे हाथ में एक कागज़ है और मैं सबको कागज़ दिखाकर फिर सवाल पूछना चाहूँगा। इस कागज़ को देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये क्या कागज़ है? बताइए। प्लान है, किस बिल्डिंग का प्लान है? उम्मीद एकेडमी का प्लान है। मगर मैं आपको बता दूं कि ये प्लान 2011 में सैंक्शन हुआ था और ये प्लान 2011 में उन 4 लोगों ने सैंक्शन किया था जिन 4 लोगों की ये ज़मीन है। उन 4 लोगों में से 2 लोग जिस्मानी तौर पे यहाँ मौजूद हैं और 2 लोग रूहानी तौर पर मौजूद हैं। इन लोगों ने ज़मीन सन 2000 में ली थी और प्लान सैंक्शन 2011 में करवाया था। मगर अल्लाह को आप लोगों को चुनना था और हम सभी को चुनना था और इस दिन को चुनना था जिस दिन इस चीज़ की हम बुनियाद रखने जाएंगे इंशाअल्लाह। जो नियत और जो सपना इन 4 दोस्तों ने 2000 में देखा था, सन 2000 में देखा था, उस सपने की ताबीर आज हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कौन सा काम कब अल्लाह को पसंद आ जाए और कौन सा काम अल्लाह को कब लेना है, हम में से किसी को नहीं पता। बस मैं 2 आखिरी बात कहूँगा और अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मंच तो ऐसा है कि मैं आपके दिल खुश करूँ और आपसे पैसे निकलवाऊँ, ऐसा करना चाहिए मुझे। मगर मुझे माफ़ करेंगे, मैं थोड़ा दिल दुखाना चाहूँगा आपका, क्योंकि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मेरी नवा में नहीं अदाए महबूबी, मेरे नवा में नहीं अदाए महबूबी, कि बांगे सूर इसराफील दिल नवाज नहीं। तो आज दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी कोई है तो वो गरीबी है, और गरीबी नहीं, जनरेशनल पॉवर्टी। किसी गरीब से आप पूछेंगे कि आप गरीब हैं तो कहेंगे हाँ मैं गरीब हूँ। आप पूछेंगे आपके बाप गरीब थे तो हाँ मेरे बाप भी गरीब थे। आपके दादा गरीब थे, हाँ मेरे दादा भी गरीब थे। आपके परदादा गरीब थे, उनके दादा, उनके परदादा सभी गरीब थे। और जिसने मेरे बाप से आकर भीख मांगा उसका बच्चा मुझसे भीख मांगेगा, और उसका दादा मेरे दादा से भीख मांगा था और उसके परदादा मेरे परदादा से भीख मांगा। तो ये कब तक चलता रहेगा? तब तक हम सवाब कमाने के लिए ज़कात और सदकात देते रहेंगे। ज़कात का निज़ाम इसलिए नहीं आया मेरे भाइयों कि हम सवाब कमाते रहें और गरीब को हर साल हम गरीबी में रखें और हम भी सवाब कमाएं ज़कात देकर, सदका देकर, और वो भी खुश रहे सदका लेकर और ज़कात लेकर। इसलिए नहीं आया मेरे भाइयों ज़कात का निज़ाम। आज ज़रूरी है, और मैं कहता हूँ फिर से, कि गरीब और अमीर के पहनावे अलग हो सकते हैं, गरीब और अमीर का खाना अलग हो सकता है, गरीब और अमीर का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अलग हो सकता है, मगर गरीब और अमीर की किताबें अलग नहीं हो सकती, गरीब और अमीर के तालीमी निज़ाम अलग नहीं हो सकती। और कोई मुझसे पूछता है कि वली भाई आप बताएं क्या कर रहे हैं, तो मैं एक लाइन में बताता हूं कि मैं अमीरों की तालीम गरीबों को दे रहा हूं, मैं अमीरों की तालीम गरीबों को दे रहा हूं। वो कैसे? कि एनसीईआरटी के बुक में आप पढ़ेंगे आंख का डायग्राम कि ये रेटिना है, ये प्यूपिल है, ये आइरिस है, और न जाने क्या क्या है आंखों में। और बच्चा पढ़ने के बाद एग्जाम भी देगा और पास भी हो जाएगा। तभी उसको आंख दिखाइए और बताइए कि इसमें से रेटिना कौन सा है, बोलेगा ये क्या होता है, वो तो किताब में देखा था हमने, आंख में कौन सा हमें क्या पता। दूसरी तरफ धीरू भाई अंबानी स्कूल में आंख का वो होलोग्राम डायग्राम आपके सामने आ जाएगा, जिसको हाथ में लेकर आंख की वजन तक महसूस कर सकते हैं आप, और रेटिना किस तरह महसूस होता है, प्यूपिल किसे कहते हैं, हर चीज को छूकर आप महसूस तक कर सकते हैं। तो ये अमीरों और गरीबों की तालीम है। आज जरूरत है कि इस ब्रिज को हम गैप करें और अमीरों की तालीम हम गरीबों तक पहुंचाएं, ताकि गरीबी से बाहर निकल सके, और हम चैरिटी बिजनेस करना बंद करें, हम चैरिटी बिजनेस करना बंद करें। अब अपने वालिद साहब से और सभी लोग से मुराद करूंगा कि जिस तरह हमारा निजाम रहा है चैरिटी का, कि हम हर साल ज़कात देते हैं, हर साल काम करते हैं, मगर वही गरीब अगले साल हमारे दरवाजे में पहुंच जाता है। हमें ऐसा ज़कात देना है कि वो गरीब अगले साल हमारे दरवाजे पे ना पहुंचे इंशाअल्लाह। और जिसके लिए इदारा बनाया जा रहा है, हर फर्द, हर बच्चा जो इस इदारे से निकलेगा वो ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाएगा या इस इंस्टीट्यूशन में ताउन करेगा फिर से इंशाअल्लाह। मैं एक नमूना दिखाना चाहूंगा आपको। मेरे बच्चे पीछे बैठे हैं, मेरे बच्चों को नहीं पता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी कोई भी बच्चा ऐसा है जो यहां आकर हाथ उठाए और स्पीच देना चाहेगा, 1-2 मिनट का स्पीच इन इंग्लिश। इज देयर एनीबडी फ्रॉम क्लास 4? यस प्लीज कम, आई कैन सी हैंड्स। बल्कि सभी लोग स्पीच दे सकते हैं। प्लीज डोंट बी नर्वस, प्लीज रन एंड कम, आई एम वेटिंग, रन एंड कम। हु एल्स will come, let me see who else will come,
लेट मी सी हु एल्स विल कम। आप लोगों ने स्पीच तैयार की कुछ? किसी ने बताया था आपको स्पीच देना है आज? आइए 1 मिनट स्पीच दीजिए। उम्मीद है कहते हैं Assalamu alaikum to everyone who was present here. So, first of all, when 4 years ago, when I come to your Umid, then I meet with my Abbaji, Mr. Wali Rahmani. He was only the one who started this foundation with Yusuf Haq, our predecessor. Did I ask you to prepare this speech? I asked you to prepare this speech. Okay, I said be ready. I might call you. Did I ask anyone else to give a speech? I had asked him only. Take the one, give a speech. Give a speech. Tell this, give a speech. Go ahead, tell this. Assalamu alaikum. My name is Bushra Naz. So when I came to Umid Academy, when I came to Umid Academy, I met to Abbaji, and that he was saying that. How has your experience been in Umid Academy? Please tell us. We have studied in Umid Academy, and when we have our teachers. Did you know how to speak in English when you came? Very little. No. I know very little bit to talk in English, and when I came to Umid Academy. Prepare this speech for today? No. Okay. तो अगर मैं इदारे के कम से कम 50% बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ आकर के इस तरह की स्पीच दे सकते हैं और ये अगले आधे घंटे तक बात कर सकते हैं, तो मैं ये नमूना पेश करना चाह रहा था आपके सामने कि ये नमूना है जो हमने 4 साल में तैयार किया है कि हमने हमारे बच्चों में ये जो कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं, और मैं अगर बुलाऊं भी तो आधे बच्चे उठकर स्टेज पे आ जाएंगे, यकीन करें। और मुझे यकीन है अल्लाह पे कि आधे बच्चे उठकर स्टेज पे आ जाएंगे। और ये जो कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ 2 रीज़न की वजह से, मोहब्बत और इज्जत। मोहब्बत और इज्जत। हमने बच्चों को मोहब्बत दी, हमने बच्चों को इज्जत दिया, और इसी मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह हम काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग जा सकते हैं। I would like to thank my team. I would like to thank everybody who's there in the organizing team. Thank you so much for making this possible. Jazakumullahu khairan. Thank you.